Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and in this session we will be starting our new chapter, that is Control and Coordination. Today's topic is Human Nervous System and Brain. First of all, we have to understand that our body has nervous system just like it has digestive system and respiratory system. Now nervous system is required by the body to transmit information from one part of the body to the other. For this we have nerves all along the body. Now this entire nervous system is made up of basic units which are called neurons. So you can say that neurons are the structural and functional unit of nervous system. It is just like the cell is the structural and functional unit of our body. So let us understand about the structure of a neuron. It is long in shape because nerves are longer, so they require to transmit information to longer distances, so they are longitudinal in shape. This is cyton, which is also known as cell body. It has a nucleus and several branches arise from this cyton. These branches, thread-like structures, are called dendrites. Dendrites are the points where impulses are received through sense receptors. Whenever there is a stimulus in the environment, it is detected by the receptors in our body and the information is transmitted to dendrites. Because यहाँ से information आती है अंदर, therefore dendrites are called afferent part of the neuron. Now the next is this long stem which is called axon. Axon just transmits impulses from dendrites to the nerve endings. As you can say, these are the ending points of the nerves and these are fine branches, again called nerve endings, and each nerve ending ends in a synaptical knob. This synaptic knob is very important because it contains neurotransmitters. These are certain chemicals which transmit information from one neuron to other. Now the information जो कि dendrite से nerve ending तक आई वो electrical information होती है, particularly electrical impulses कहते हैं इनको. तो यहाँ तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, बट फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो केमिकल्स के थ्रू जाती है. वो केमिकल्स जो साइनेप्टिक नॉब में फिल्ड इन होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमिटर्स कहते हैं. सो बेसिकली जब एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से किसी नए न्यूरॉन के डेंड्राइट्स टच करते हैं तो वो ये केमिकल्स उस स्पेस में रिलीज होते हैं और वो केमिकल्स उस नए न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर एज स्टिमुलस काम करते हैं एंड फाइनली एक नया नर्व इम्पल्स उस डेंड्राइट में और उस न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है. इसी तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होकर फाइनली सिग्नल ब्रेन तक जाता है. बट sometimes these nerve endings can fall on a muscle. If the synaptic knob of nerve endings end at a muscle, this combination is called neuromuscular junction, that is junction of a muscle and a neuron. The detailed structure of a neuromuscular junction is described here. ये एक synaptic knob की वेसिकल है. इस वेसिकल में केमिकल्स भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, और ये मसल फाइबर है. केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जब इम्पल्स आता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज हो जाता है इस स्पेस में. इस स्पेस को कहते हैं साइनैप्स, दैट इज साइनैप्टिक वेसिकल और मसल फाइबर के बीच के स्पेस को हम साइनैप्स कहते हैं. यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर मसल्स में जाता है. मसल्स में इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं. जैसे ही ये केमिकल उनको टच करता है तो वहाँ पे भी रिएक्शंस होते हैं और मसल्स के जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें चेंजेस होते हैं, अरेंजमेंट्स चेंज होती हैं और मसल की शेप चेंज होती है. इसी शेप चेंज को हम मूवमेंट कहते हैं. जब भी सपोज हमने किसी हॉट चीज़ को टच किया और हमने उसे हटाया एकदम से हाथ को, तो बेसिकली यहाँ पर हमारी मसल्स के प्रोटीन्स की शेप चेंज होती है जिससे अल्टीमेटली एक मूवमेंट नज़र आती है. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट इज रिफ्लेक्स आर्क. बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो हम सोच समझकर अपने ब्रेन की कैपेसिटी के साथ करते हैं, बट समटाइम्स ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशंस होती हैं जहां पर हमारी बॉडी स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करती है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आवर ब्रेन. ऐसे सिचुएशन को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो रिफ्लेक्स आर्क डिनोट करता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप गलती से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ एकदम से दूर हो जाता है या फिर
बहुत तेज लाइट अगर आपकी आंखों पर पड़े तो ऑटोमेटिकली आप विंक करने लगते हो। दीज आर ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस। नाउ सपोज एक हॉट ऑब्जेक्ट है तो आपके स्किन में रिसेप्टर्स होंगे, उन रिसेप्टर्स से सेंसरी न्यूरॉन्स इम्पल्सेस लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, यहाँ पर एक रिले न्यूरॉन होगा। दिस इज द रिले न्यूरॉन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा। रिले न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाएगा एंड देन मोटर न्यूरॉन विल ब्रिंग द इंफॉर्मेशन टू एन इफेक्टर मसल। अगेन यहाँ पे इम्पल्स आते ही मसल के प्रोटीन्स में चेंजेस होंगे जिससे उसकी शेप बदलेगी एंड फाइनली मसल मूव करेगा और ये हाथ पर्सन हटा लेगा उस हॉट ऑब्जेक्ट से। सो दिस इज हाउ अ कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स। दिस schematic flow of information is called reflex arc. Now there are various types of receptors in our body like tactoreceptors for sensation of touch, tangoreceptors for taste, olfactory receptors for smell, thermoreceptors for detection of heat or cold, photoreceptors for detection of light, and there are many more receptors for which you can refer to our book of DNA Education Key Point Science class 10th. Now we have to study about the schematic flowchart of nervous system. हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम के डिविजन्स होते हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शंस को कंट्रोल करता है जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एफरेंट और इफरेंट. एफरेंट जो होता है वो सेंसरी पार्ट होता है जो कि इन रिसेप्टर्स से लिंक्ड है या सेंसरी न्यूरॉन्स से लिंक्ड है. इफेक्टर जो होता है वो मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट करके मूवमेंट कॉज करता है जैसे कि ये इफेक्ट मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर मसल. जो इफरेंट है यानी कि जो एक्शन कॉज कर रहा है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. इसमें फर्दर डिवीजन होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज करे जा सकते हैं थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. अगर सपोज इन दोनों में से कोई एक सिस्टम किसी एक्शन को इंक्रीज करता है तो दूसरा उसको डिक्रीज करता है एंड वाइस वर्सा. फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट को इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, और इसी तरीके से ब्रीदिंग रेट को भी इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ब्रेन इन डिटेल. जैसे कि हमने देखा रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मेनली ये स्पाइनल कॉर्ड से लिंक्ड है तो एक्शन तुरंत आ जाता है और मैसेज ब्रेन तक बाद में जाता है. इसी तरीके से अब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. ब्रेन यूजुअली ह्यूमन ब्रेन के दो हेमिस्फेयर्स होते हैं. ये दोनों हेमिस्फेयर्स आपस में ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल फिशर से डिवाइडेड होते हैं, साथ में कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ टिश्यू कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम. अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो सेंटर से ब्रेन ऐसे नजर आता है. अब इसके स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं. ये है क्रेनियम. क्रेनियम होता है ब्रेन बॉक्स, हमारे स्कल का पार्ट होता है और ये बोनी होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. इसके अंदर मेनिंजेस होते हैं. मेनिंजेस मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनमें फ्लूइड भरा होता है जो ब्रेन को शॉक से प्रोटेक्ट करते हैं, किसी इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं. ये पार्ट फोर ब्रेन कहलाता है. इसमें ये जो फिशर्स दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड सेरिब्रम. तो फोरब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ सेरिब्रम, दिस इज अ ब्लड वेसल एंड दिस इज द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनका फंक्शन हम सब्सीक्वेंट सेशंस में पढ़ेंगे. एंड नाउ दिस इज द हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में एक सेरिबेलम होता है, देयर इज अ पॉन्स एंड देयर इज अ मेड्यूला. मेड्यूला जो होता है वो फर्दर एलोंगेट होता है इनटू स्पाइनल कॉर्ड और यही स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम से पास करते हैं. नाउ वी हैव टू लुक एट द फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन. ब्रेन को मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. फोर ब्रेन थिंकिंग में हेल्प करता है, हियरिंग स्मेल साइट जो हमारे सेंसेस हैं उनमें हेल्प करता है, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो है वो भी फोर ब्रेन ही करता है. और फोर ब्रेन में हंगर सेंटर भी होता है जो हमें बताता है कि आर वी हंग्री और आर वी फुल.
नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारे काफ़ी सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शंस भी आ जाते हैं, बिकॉज अगेन रिफ्लेक्स एक्शन हमारे विल से नहीं होता, ये एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है। हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, और माउथ वाटरिंग, जैसे किसी फूड पर्टिकुलर फूड को देखकर हमारा माउथ वाटर करता है, वो सारे एक्टिविटीज़ भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग का सेंटर होता है, जो वॉमिटिंग होती है उसको कंट्रोल करता है, सलाइवेशन इन माउथ, और ये तीनों फंक्शंस हाइंड ब्रेन में मेड्यूला कंट्रोल करता है। जैसे हमने पढ़ा, हाइंड ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। तो मेड्यूला का फंक्शन है ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग एंड सलाइवेशन। सिमिलरली सेरिबेलम जो होता है वो बॉडी पोस्चर और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, इसीलिए जब लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो ब्रेन के सेरिबेलम को इफेक्ट करता है और सेरिबेलम काम नहीं कर पाता, इसीलिए अल्कोहलिक लोग सीधे चल नहीं पाते या उनके बॉडी कोऑर्डिनेशंस ठीक नहीं होते, पोस्चर मेंटेन नहीं रहता। लास्ट इज पोन्स। पोन्स इज द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, ये हमारी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन ब्रेन एंड द वेरियस फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन लॉग इन टू www.dnaeducation.com. Thank you.